Good evening, students. Today I will teach you about human health and disease. That is lecture number 4. We will discuss the topic is bacterial disease. Last time हमने पढ़ा था protozoa disease, but in this topic we will discuss the bacterial disease, and that name is typhoid. Typhoid is that type of disease that is caused by contaminated food and contaminated water. That is the bacteria that cause typhoid disease, that is known as Salmonella typhi. Salmonella typhi that cause typhoid, and that is the variety of pathogen that cause typhoid disease. Typhoid is also known as, मैंने लिखा है यहाँ पे, that is enteric fever. Enteric fever या हम इसको नाम दे सकते हैं that is intestinal fever. Then what is the meaning of this? कि मतलब यहाँ पर बॉडी में 103, 102 डिग्री सेल्सियस तक फीवर होगा. That is typhoid Mary. Typhoid Mary whose that is a classic case in medicine. That means in short, Mary Mellon को हमने नाम दिया है typhoid Mary. Mary Mellon was a cook by profession and was a typhoid carrier. That means that is a disease spreading carrier. या that is known as vector लिख सकते हैं. ठीक है. She continued to spread typhoid. जो भी वो खाना बनाती थी, that food she prepared the typhoid for several years through the food she prepared. तो मैरी मेलन को हमने इन शॉर्ट लिख दिया टाइफाइड मैरी. दैट इज अ निकनेम. What are the signs and symptoms of typhoid? There is high fever, but pulse rate is low. High fever होगा और pulse rate हमारी बॉडी का होता है 72 times per minute. बट यहाँ पे जो pulse rate है बेटा वो low होगा. नेक्स्ट लाइन है the patient feels abdominal pain. जो पेशेंट है वो फील करेगा abdominal pain and passes frequent stools. That means the cramp in abdomen, that is abdominal disease. In certain causes, that is intestinal perforation. Intestinal perforation means बेटा the intestine contain pores. intestine में क्या होंगे? pores होंगे, and that result in bleeding. क्या cause होगी बेटा? that result in bleeding. The Vidal test, that is incubation period is 1 to 3 weeks, and that test is name is Vidal test, that is confirm the typhoid disease. Typhoid vaccine is available in the market. Typhoid vaccine क्या है बेटा? Available है. The patient is treated with antibiotics such as terramycin and chloromycetin. The patient is treated with antibiotics, that is terramycin and chloromycetin. बेटा दो चीज मेनली ध्यान रखनी है. एक सबसे पहले टाइफाइड मेरी का क्वेश्चन जनरेट होता है, एंड दूसरा दैट इज इंटेस्टाइनल परफोरेशन. दैट मींस अगर सीवियर केस होगा तो दैट इज नोन एज इंटेस्टाइनल परफोरेशन. इन दिस केस द इंटेस्टाइन आर नॉट एब्जॉर्ब प्रॉपर्ली फूड, दैट रिजल्ट इन ब्लीडिंग एंड दैट चोक टू फैटल होगा, दैट इज किल. दैट मींस बेटा दैट किल डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमन बीइंग. इज दैट क्लियर? अनदर डिजीज पे आते बेटा, दैट इज निमोनिया. निमोनिया का डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. दैट इज नोन एज पैथोजन. दैट इज अ कॉजेटिव एजेंट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. मैंने आपको बताया है ये क्या है. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज द बैक्टीरिया एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा वायरस. द निमोनिया इज सीरियस डिजीज ऑफ द लंग्स. दैट मींस जो हमारी एल्वोली है और जो हमारे लंग्स है वो डैमेज होंगे. That means the fluid is filled in the lungs and the lungs do not have enough space to respiration or breathing. In this case, the oxygen is not completely reached in the tissues and the tissue or skin become bluish in color. That means बेटा the mode of transmission, the disease spread by sputum. जो बलगम होगा बेटा उससे पेशेंट से स्प्रेड होगी. इसका भी इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 3 days. What are the signs and symptoms? क्या क्या लक्षण दिखेंगे इसमें? क्या आएगा? म्यूकस आएगा and dead WBCs collect in the alveoli. सेम क्वेश्चन है बेटा. पूछता है कि हम सिर्फ लिखते हैं fluid, but what is the name of fluid that is filled in the lungs or alveoli? That name is lymph mucus and other one is WBC collect in the alveoli and bronchioles. दूसरा आता है प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस डज नॉट takes place. मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होगा
कि लिम्फ और म्यूकस ये फिल हो जाएगा तो प्रॉपर स्पेस बचेगा नहीं एल्वोली में, दैट चोक टू दैट। और इसमें एक कंडीशन है बेटा साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब क्या है? द ऑक्सीजन इज नॉट रीच इन द टिश्यू, द ऑक्सीजन इज नॉट रीच इन द टिश्यू, पेन व्हाइल ब्रीदिंग। दैट मीन्स बेटा जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल नहीं पहुंचेगी टिश्यूज के पास, और अगर टिश्यू के पास इनफ ऑक्सीजन नहीं है तो दैट चोक टू दैट, पेन होगा बेटा ब्रीदिंग में, जो लंग्स है वो प्रॉपर डैमेज मतलब प्रॉपर काम नहीं करेंगे। इन सीवियर केसेस जो लिप्स है और जो फिंगर नेल्स है वो क्या हो जाएंगे बेटा ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, दैट इज आल्सो अ सिम्टम। एंड निमोनिया यूजुअली लोअर बॉडी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है बेटा इनहिबिट, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा इनहिबिट, ड्यू टू एक्सपोजर माल न्यूट्रिशन। दैट मीन्स बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माल न्यूट्रिशन? दैट इज डेफिशिएंसी इन न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन ऑफ सम अदर डिजीज सच एज इन्फ्लुएंजा। स्पूटम इज ब्लडी, मतलब स्पूटम में क्या आएगा बेटा ब्लड आएगा और रस्टी पार्टिकल्स सब्सटेंस रिलीज होंगे। दो चीज याद रखनी है बेटा, द डिजीज स्प्रेड बाय स्पूटम ऑफ द पेशेंट, डिजीज कॉजिंग होंगे दैट नेम इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। सबसे मेन क्वेश्चन जो नीट में भी डिस्कस होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ फ्लूइड दैट इज डिपॉजिट इन द लंग्स और एल्वोली? दैट इज लिम्फ म्यूकस, जो लिम्फ का जो फ्लूइड है, एंड दैट WBC is collect in the alveoli and bronchioles. Because of this the proper exchange of gases does not takes place in the alveoli. In this condition that is known as cyanosis, skin turn bluish, that means the because the oxygen is not reach in the tissue, that means बेटा इस प्रोसेस का नाम साइनोसिस है। इस कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीजन टिश्यू के पास नहीं जाएगी और पेन रहेगा ब्रीथिंग में। इज दैट क्लियर? सेकंड टॉपिक अपना आता है बेटा ट्यूबरक्लोसिस, that is also a bacterial disease, that is also a bacterial disease, that name is disease causing organism का नाम है बेटा that is a pathogen, that is a pathogen, that is disease causing organism, that name is myobacterium। बेटा नाम से पता चल रहा है बैक्टीरिया है, myobacterium tuberculosis। bacteria damage the tissue and release a toxin name, that name is tuberculin। What is the name of toxin that produce disease? तो बेटा हम पढ़ेंगे the name of toxin, that name is tuberculin। क्या नाम है बेटा tuberculin। that tuberculin affect the lungs, lymph node, bones and joints। बेटा मैंने आपको दो टाइप की टीबी बतानी है, एक पल्मोनरी होगी एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी रिलेटेड टू लंग्स एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी दैट इज नॉट रिलेटेड टू द लंग्स, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मोड ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन अकर्स बाय इनहेलेशन। इनहेल का मतलब बेटा लेना, किसके? ड्रॉपलेट्स या एरोसोल स्प्रे, ड्रॉपलेट्स या एरोसोल स्प्रे जो एक्सपेल किए किसने बेटा? ट्यूबर, मतलब हमने मतलब खांसा, खांसने के बाद जो एरोसोल स्प्रे है वो एयर कांटेक्ट में गए, एयर कांटेक्ट से फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर स्प्रेड हुए। द कंजप्शन ऑफ फूड एंड ड्रिंक, जो फूड हम खाएंगे पानी जो हम पिएंगे अगर वो कंटामिनेटेड है किससे? बैक्टीरिया, दैट नेम इज मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। मिल्क से ले सकते हैं अगर किसी पेशेंट को ट्यूबरकुलर एनिमल्स हैं वो। दूसरा आता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में दो टाइप की टीबी मैंने आपको बताई थी, एक पल्मोनरी टीबी है एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है। पल्मोनरी टीबी दैट अफेक्ट द लंग्स, एक्स्ट्रा पल्मोनरी दैट अफेक्ट आवर इंटेस्टाइन, दैट अफेक्ट आवर जॉइंट्स, दैट अफेक्ट आवर स्पाइन, स्पाइन दैट प्रेजेंट बिटवीन इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम। फर्स्ट टॉपिक आता है बेटा साइंस एंड सिम्टम्स। आ गए साइंस एंड सिम्टम्स। बेटा मैंने आपको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी नहीं पढ़ाना है, मैं आपको ओनली बताऊंगा पल्मोनरी टीबी बिकॉज दैट इज इन योर सिलेबस। पल्मोनरी टीबी सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस आर, पहले आ जाएगा बेटा फीवर, फीवर के साथ रहेगा कफ, कफ के साथ रहेगा ब्लड कंटेनिंग स्पूटम, जो बलगम होगा जो स्पूटम होगा उसमें ब्लड आएगा। पेन होगा बेटा चेस्ट में, लॉस ऑफ वेट, स्लाइट इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, थोड़ा सा टेम्परेचर इवनिंग टाइम में इंक्रीज होने के चांसेस है, स्वेटिंग होने के चांसिंग है। होर्सनेस ऑफ थ्रोट, नाइट स्वेटिंग एंड रैपिड पल्स रेट, जो बेटा हमारी पल्स रेट है वो होती है 72 टाइम्स पर मिनट। यहाँ पर ये जो पल्स रेट है ये बढ़ जाएंगे 100, 110 तक चली जाती है। दूसरा आता है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, बीसीजी। बीसीजी की फुल फॉर्म लिख लेंगे, टेंशन ही लेनी है कि बीसीजी होता क्या है। बीसीजी की फुल फॉर्म है बैसिलस कालमेट ग्वीरिन,
अगर आप गूगल पे भी चेक करते हैं, कालमेट एंड ग्विलिन आर टू ब्रदर्स दैट फॉर्म अ वैक्सीन दैट इज बीसीजी दैट फ्रॉम बैसिलस। दूसरा आता है बीसीजी वैक्सीन गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। दूसरा बेटा इसमें कंडीशन दी जाती है दैट इज डोट्स, डोट्स दी जाएंगी बेटा। डोट्स क्या होगा? डोट्स एक बेटा मेडिसिन मेथड है। इस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट को रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ती है। अगर वो वन डे भी उस मेडिसिन को ड्रॉप कर देता है तो इन दिस केस अगर उसको एक बार भी उसने मेडिसिन ड्रॉप कर दी तो क्या होगा? उसने दोबारा उसका वो कोर्स है दोबारा से आएगा, और उस कंडीशन में अगर उसने रिपीट किया है तो उसको चांसेस है कि उसका जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंट हो जाएगा। रेजिस्टेंट टू या रेजिस्टेंट फ्रॉम एंटीबायोटिक्स के मतलब कितनी भी हम एंटीबायोटिक ले ले वो हमारी बॉडी को वो हमारी बॉडी पे हमारे जो डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। वाइल कफिंग पेशेंट शुड कीप द हैंडकरचीफ। मैंने बोला कि मतलब किसी ने कफ किया तो उसको क्या करना है? अपने मुंह पे हैंडकरचीफ लगाना है, मास्क लगाना है बिफोर हिज और हर माउथ। और यहां पर है बेटा ट्यूबरक्लोसिस इज क्योरेबल। मैंने आपको बताया द डोट्स में बेटा क्या है? बेटा ये मेडिसिन टेकिंग है, गवर्नमेंट ऑथराइज है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी दे रहे हैं। ये टीबी फ्री इंडिया में इंक्लूड है डोट्स। इसमें ट्यूबरक्लोसिस है बेटा दैट कंडीशन। इसमें क्या है कि डोट्स के थ्रू हम ट्यूबरक्लोसिस को क्योर कर सकते हैं। दैट इज योर लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट वायरल डिजीज। ओके बेटा।